ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج میں آپ کے سامنے جو تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ثناء اللہ ثانی ڈار۔ ثناء اللہ ثانی ڈار کو ہم سبھی میرا جی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج میں انہی کا تعارف، ان کی تصانیف، ان سے متعلق سوالات پیش کروں گا، کیونکہ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 4 میں میرا جی کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ UPTGT کے سلیبس میں بھی یہ شامل ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کا تعارف اور ان کی تصانیف۔ سب سے پہلے تو میرا جی کا اصل نام ثناء اللہ ثانی ڈار تھا، اور میرا جی پہلے ساحری تخلص استعمال کرتے تھے اور بعد میں میرا جی تخلص استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں میرا جی نے ہزلیہ شاعری میں لندور تخلص استعمال کیا ہے۔ آپ کو میرا جی سے متعلق جو بات یاد رکھنی ہے وہ سب سے زیادہ تو یہی یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے اپنی کس شاعری میں کس تخلص یا کس نام کو استعمال کیا ہے۔ تو ہزلیہ شاعری میں انہوں نے اپنے تخلص کو لندور استعمال کیا ہے، اور پہلے تخلص یہ ساحری استعمال کرتے تھے، بعد میں انہوں نے میرا جی تخلص استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میرا جی نے اپنی ادبی دنیا میں اپنے مختلف 8 ناموں کا استعمال کیا ہے۔ یاد رکھنا، اردو کے اندر، اردو ادب میں قلی قطب شاہ نے بھی سب سے زیادہ اپنے ناموں کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 1 درجن سے زیادہ اپنے تخلص استعمال کیے شاعری میں۔ اسی طرح سے میرا جی نے بھی 8 اپنے ناموں کو استعمال کیا ہے، اور وہ کیا نام ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرا جی ثناء اللہ ڈار، ساحری، لندور، بسنت سہائے، بشیر چند، بشونند، میرا جی المعروف بندے حسن، یہ 8 نام ہیں۔ میرا جی نے میرا جی تخلص کیوں استعمال کرنا شروع کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا جی ہندو بنگالی لڑکی میرا سین کے عشق میں گرفتار ہوئے، اور اس وجہ سے اپنا نام ثناء اللہ ڈار سے بدل کر میرا جی رکھ لیا۔ چونکہ اس لڑکی کا نام میرا سین تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا نام ثناء اللہ ڈار سے بدل کر میرا جی رکھ لیا۔ اس کے بعد میں میرا جی کی پیدائش 25 مئی 1912 کو ہوئی، اور میرا جی کی وفات 3 نومبر 1949 کو ممبئی میں ہوئی۔ میرا جی کے والد کا نام منشی محمد مہتاب الدین تھا، اور میرا جی کی والدہ کا نام زینب بیگم عرف سرداری بیگم تھا۔ میرا جی 1938 سے 1941 تک ادبی دنیا لاہور کے نائب مدیر رہے ہیں۔ میرا جی نے 1942 سے 1945 تک آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا، اور یہ وہی دور تھا جب انہوں نے گیت لکھنا شروع کیے۔ 1943-44 میں انہوں نے گیت لکھنا شروع کیے تھے۔ میرا جی کی تصانیف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے جو شاعری کے مجموعہ کلام شائع ہوئے، ان میں میرا جی کے گیت، ان کے شاعری کا مجموعہ کلام ہے، یہ 1943 میں شائع ہوا۔ میرا جی کی نظمیں، یہ 1944 میں شائع ہوا۔ گیت ہی گیت، یہ بھی 1944 میں شائع ہوا، اور یہ آخری مجموعہ کلام ہے ان کی حیات میں شائع ہونے والا۔ ان کے انتقال کے بعد جو مجموعہ کلام شائع ہوئے ان کی شاعری کے، وہ ہیں پابند نظمیں، 1968 میں شائع ہوا، اور 3 رنگ، یہ بھی 1968 میں شائع ہوا، اور سب سے آخر میں ان کا جو مجموعہ کلام شائع ہوا ہے وہ ہے سایہ آتشہ، یہ 1992 میں شائع ہوا۔ ان کے انتقال کے بہت ہی عرصہ گزر جانے کے بعد سایہ آتشہ ہے آخری ان کا مجموعہ کلام 1992 میں شائع ہوا۔
मीरा जी की मशहूर नज़में हैं क्लर्क का नगमा मोहब्बत, जातरी, समंदर का बुलावा। याद रखना ये तीनों नज़में उर्दू UGC नेट के सिलेबस में शामिल हैं। व्यापारी, रस की अनोखी लहरें, हिंदुस्तानी औरतें, राबी की एक रात, सिलसिला रोज़ो शब, एक थी औरत, तन्हाई, मुस्तरब। ये इनकी मशहूर नज़में हैं। नज़म से मुतालिक एक बात मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि एक नज़म है तन्हाई, मीरा जी की नज़म है, और तन्हाई के नाम से फैज़ अहमद फैज़ की भी एक नज़म है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस्माइल मेरठी की एक नज़म है हमारी गाय। इस्माइल मेरठी की नज़म है गाय, और हमारी गाय के नाम से ब्रज नारायण चकबस्त की भी एक नज़म है। उसी तरह से जोश मलिहाबादी की एक नज़म है बरसात की बहारें, और बरसात की बहारों के नाम से एक नज़म जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की भी है। तो ये जानकारी मैंने आपके सामने बयान कर दी। इसको याद रखना, ये बहुत ही ख़ास जानकारी है। इसके बाद में एक बात और भी मैं आपके सामने बयान कर दूं कि नज़म जो इसमें शामिल हैं सिलेबस में, उर्दू UGC नेट के सिलेबस में, ये इसमें नज़म के अंदर किस बहर का इस्तेमाल हुआ, किस वज़न का इस्तेमाल हुआ, इससे मुतालिक सवालात आते हैं। इसी वजह से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें उर्दू के जितने भी शायर शामिल किए गए नज़म को, उनकी जितनी भी नज़में हैं उन सभी की बहर और वज़न मैंने बयान किया है। उसमें बताया है किस बहर का, किस वज़न का, किस नज़म में इस्तेमाल हुआ है। उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वो वीडियो आपको इस वीडियो के आखिर में स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब आप देखते हैं आगे मीरा जी की दीगर तसानीफ़। दीगर तसानीफ़ में इनकी दो तसानीफ़ सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। एक मग़रिब व मशरिक़ के नग़मे, ये 1958 में शाया हुआ कलाम, ये मजमुआ है। इसके बाद में इस नज़म में ये याद रखना मजमुआ कलाम है तनक़ीदी मज़ामीन का, नसरी तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ कलाम है। इस नज़म में नाम इसका ज़रूर, मतलब इसका नाम जो है वो ज़रूर इस नज़म में रखा गया है, लेकिन इसमें कोई भी नज़म शामिल नहीं है। इस मजमुआ कलाम में सिर्फ तनक़ीदी मज़ामीन शामिल हैं। 1944 में शाया हुआ। इसको बहुत ही गौर से याद करने की ज़रूरत है। इससे मुतालिक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। आपके सामने सवाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा, नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वो सभी मजमुआ कलाम जो हैं वो नज़म के ही होंगे। उसी में ये भी दे दिया जाएगा इस नज़म में, और पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा मजमुआ कलाम नज़म का नहीं है। तो यही मजमुआ कलाम नज़म का नहीं है इस नज़म में। यह है तनक़ीदी नसरी मज़ामीन का मजमुआ। इसके बाद में मीरा जी से मुतालिक कुछ ख़ास बातें जिनसे भी सवालात आते हैं। सबसे पहले मीरा जी का ताल्लुक़ जो है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से था। ये तहरीक थी, सबसे आखिरी तहरीक है उर्दू अदब में। इस हल्का अरबाब ज़ौक़ में जो शामिल शायर थे वो सभी शायर ऐसे थे जो आज़ाद नज़म लिखते थे। मीरा जी को गांधी का लक़ब नून मीम राशिद ने दिया था। नून मीम राशिद ने दिया था गांधी का लक़ब मीरा जी को। मीरा जी ने बसंत सहाय के नाम से अदबी दुनिया में मज़ामीन लिखे हैं। ये भी याद रखना फिर कि इन्होंने बसंत सहाय के नाम से मज़ामीन लिखे हैं। और इन्होंने जो ख़ुतूत लिखे हैं उनमें क्या नाम इस्तेमाल किए हैं वो हैं, इन्होंने मीरा जी ने जो ख़ुतूत लिखे उसमें जो नाम इस्तेमाल हुए हैं वो हैं बशीर चंद, बशुनंद और मीरा जी अल मारूफ बंदे हसन। इन तीन नामों से इन्होंने ख़ुतूत लिखे। इसके बाद मीरा जी की पूरी शायरी को तरक्की पसंदों ने ज़हनी गलाज़त का ढेर करार दिया है।
मीरा जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इस शौक़ के सबब आपने दुनिया के तमाम शायरों का मुताला किया था। मीरा जी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत के वक्त गीत लिखना शुरू किए थे। ये मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूँ कि मीरा जी ने 1943-44 में गीत लिखना शुरू किए थे, उस वक्त जब वो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम थे। इसके बाद में मीरा जी का मुंबई कंग एडवर्ड अस्पताल में इंतकाल हुआ और आपके जनाजे में सिर्फ 4 आदमी शरीक हुए थे। आपको मुंबई के कब्रिस्तान में मीरन लाइन में आसूदा खाक किया गया है। तो मीरन लाइन जो कब्रिस्तान है उसमें इनको दफन किया गया है। आज मैंने आपके सामने मीरा जी का तारुफ और तसानीफ पेश की है। आपकी स्क्रीन पे उर्दू जीसी नेट के सिलेबस में जो नज़में शामिल हैं उनमें किस नज़म में कौन सा बहर वज़न इस्तेमाल हुआ, इससे मुतालिक वीडियो शो हो रही है, आप देख सकते हैं, उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए इंतखाब के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।